again. So first chapter is physical world. Physical world में इतना कुछ आता नहीं है, but however it is to reconcile the complete syllabus and recapitulate whatever we have learned it then. Okay? So physical world. Now, the physics is coming from physicia, that is nature. Okay, so physics. So the laws by which nature is governed is coming under branch of science called physics. Science has various branches: chemistry, bio, physics. So which is what we can perceive is called nature. जिसे हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, anything that is called nature. And but it is governed by certain laws. Why rainbow is formed? Why this machine is working? Why this is not working? How the heat will go from hotter room to cooler room to hotter room? This atmosphere is 27. However, outside it is 40, but still the heat is moving from cooler to hotter. So if you know anything better in terms of law, you can also manipulate the things. Then you can manage the things. If you know how it is raining, then you can manipulate the things. The China has deployed 16 helicopters carrying silver bromide, and wherever it wants, it precipitates the cloud and there it rains. वो जहाँ चाहता वहीं बारिश कर देता है, क्योंकि उसके लिए लॉ जानना चाहिए ना. इसी तरीके से न्यूटन के ग्रेविटेशनल लॉ है, चीज़ को ड्रॉप करो नीचे ही गिरेगी, कितनी देर में गिरेगी, कोई चीज़ पर फोर्स लगाए तो कितनी देर में जाएगा. सो ये लॉ है. देयर आर वेरियस लॉज. फिजिक्स में तो हमने पढ़ रखे हैं, साउंड के लॉज हैं, लाइट के हैं कि नहीं, 10th में पढ़ रखे हैं. तो दैट इज एनीथिंग विच इज related to nature, how nature is working. And law is that why we are stating it as a law. We are not stating it as a hypothesis, because hypothesis is a kind of thinking in mind which is not yet proved and yet to be proved. But law is that which is checked by many and proved by all, so it never fails. तो इसीलिए फिजिक्स के लॉज होते हैं, क्योंकि नेचर में लॉज चलते हैं. समझ में आया? केमिस्ट्री में लॉ जैसा वर्ड नहीं है. केमिस्ट्री में थिंग्स अनसर्टेन. अभी साइंटिस्ट ये अभी भी डिसाइड कर रहे हैं चीज़ें क्या हैं, उन्हें भी ठीक से मालूम नहीं. तो लॉ वर्ड नहीं है कहीं पर भी आते. फिजिक्स में लॉ, ग्रेविटेशनल लॉ ऐसे है कि नहीं, लॉज ऑफ मोशन. अब देखो, अब यहाँ एक वर्ड नया आ गया, साइंस. सो द ब्रांच ऑफ साइंस. नाउ व्हाट इज साइंस? Science is coming by scientia. ये तो फिजिक्स की डेफिनेशन हो गई. How? It is coming from scientia, and that means in Arabic it means is knowledge. So it is also known as Vigyan. If you are approaching certain things in a proper manner, then it is, you can very well understand its functioning. Vigyan means knowing in a proper manner, in a proper method. अगर आप जानना चाहते हो कि पत्तियों का रंग हरा क्यों है, why these leaves are green, तो आपको पता करना पड़ेगा कि उसमें क्लोरोप्लास्ट है. क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल है. फिर क्लोरोफिल की वजह से अगर हरा है तो आप ये मत नहीं कह सकते दिव्या से चलो इसकी ग्रोथ भी देख लेते हैं साथ ही साथ. नहीं,
अगर आपको ग्रीननेस देखनी तो आपको उसी पे ओरिएंट करना पड़ेगा। आप ये नहीं कि 10 फीचर एक साथ लेके चलेंगे, तब तो आप कुछ भी नहीं पता लगा पाएंगे। सो यू शुड ओरिएंटेड अबाउट ग्रीनरी। तो ये कम ग्रीन क्यों है, ये ज़्यादा ग्रीन क्यों है। फिर इसके बाद क्लोरोफिल में क्या ऐसी चीज़ है जो ग्रीन करे, तो मैग्नीशियम। तो अब उसमें ये देखना पड़ेगा मैग्नीशियम का अमाउंट उसमें कितना है, इसमें कितना है। सो दिस इज ए काइंड ऑफ अप्रोच विच इज यूज्ड इन साइंस टू नो एनीथिंग। ओके, सो साइंस इज व्हाट नाउ एंड व्हाट इज साइंटिफिक मेथड। सो टू नो एनीथिंग इन डेप्थ it is called science in a proper scientific method to know about anything and then to use that knowledge for human welfare. साइंस से हमें इसलिए नहीं पढ़ रहा है कि हमें मजाक करना है, हमको उसको मैनिपुलेट करना है। हम साइंस जानते हैं इसीलिए ह्यूमन आज टॉप पे है, नहीं तो दूसरे तो मशीन नहीं बना सकते, बाकी तो जानवर है वो घर भी नहीं बना सकते। साइंस जान के हमने घर बनाया। Okay, so to know about anything in universe and use that knowledge in welfare of mankind is called science. To know about anything in proper scientific method and using that knowledge. So anything का मतलब है in universe, anything का मतलब समझ में आ गया ना, and using that knowledge for welfare of human is called science. So this is science. Okay? Now अब आप कहोगे सर यहाँ तो एक नया वर्ड आपने डाल दिया साइंटिफिक मेथड, इसके बारे में बताइए, है ना। तो व्हाट इज साइंटिफिक मेथड? Okay, that is scientific method involves several interconnected steps. हमें क्या करना है, किसी चीज को जानने का तरीका आप जान जाओगे। So it involves certain interconnected steps. What are those steps? सबसे पहले आपको सिस्टमिक ऑब्जर्वेशन करना है। सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन आप कैसे कर पाओगे? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन आप करिए किसी चीज का। मीन्स देयर आर टू काइंड्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, वन इज क्वालिटेटिव एंड अदर इज क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव का मतलब है कि उसका ऑर्डर कैसा है, कलर कैसा है, टेक्सचर कैसा है, प्रोफाइल कैसा है, गुण धर्म रंग गंध, इन सब चीज़ों के बारे में जानना। और क्वांटिटी कितना है, डेंसिटी है तो कितनी है, वॉल्यूम है तो कितनी, सब चीज़ें। अगर आप पत्तियों की लेंथ नाप रहे हो तो कितने mm है, उस चीज़ का प्रिसीजन प्रॉपरली मेजर करना है। ऑब्जर्वेशन इसी चीज़ को जो कहते हैं ना, ऑब्जर्व किए बिना साइंस जान सकोगे क्या? तो पहली चीज़ क्या है? सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन। एक चीज़ पे ध्यान दे रहा है तो उसी पे ध्यान देना है। कोई क्या ग्रोथ पे तो नहीं है। आई एम ओनली लुकिंग आफ्टर अबाउट किसके बारे में? ग्रीनरी। जैसे अगर आपके पैर में दर्द है या कहीं कुछ दर्द है तो क्या किसी के पास भी चले जाते हो? ऑर्थोपेडिक के पास चले जाते हो, न्यूरोलॉजिस्ट के पास या नेफ्रोलॉजिस्ट, या कोई भी मिलता है तो इसी तरीके से डेंटिस्ट के पास या ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास, किसी के पास भी चले जाते हो। जो उसका प्रॉपर जानकार है उसी के पास तो जाओगे। सो ऑब्जर्वेशन का मतलब है सबके ओरिएंटेड है, वो उसी को ऑब्जर्व करते रहे, उसी को जान सके। तो इसमें दो तरीके की एनालिसिस होती है, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। कितना है, अगर ये इतना है तो कितना, लंबी पत्ती है तो कितनी लंबी है, तो दो तरीके की, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। दैट इज कलर, ऑर्डर, टेक्सचर,
सॉइल के प्रोफाइल होते हैं कि नहीं, किसी मोटी बजरी, पतली बजरी, ऐसे ग्रेवल होते हैं, फाइन ग्रेवल, सैंड होता है। और क्वांटिटेटिव का मतलब रिलेट्स अबाउट मेजरमेंट, मास का मेजरमेंट, लेंथ का मेजरमेंट, किसी चीज का मेजरमेंट। सो इट रिलेट्स अबाउट मेजरमेंट। नेक्स्ट देखिए, तो पहला हमने अगर ऑब्जर्वेशन कर लिया, अब मैं क्या करूँगा, आफ्टर दैट वी विल डू कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। नाउ नेक्स्ट आवर प्रोसीजर इन्वॉल्व्स दैट इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट गैलीलियो ने किया। गैलीलियो ने क्या कर दिया, गैलीलियो ने कहा कि चाहे कोई भी चीज हो, कबूतर का पंख हो, या अगर आप कोई पत्थर भी फेंक रहे हैं या पेपर फेंक रहे हैं, तो ये बात गैलीलियो ने बताई, ये सब एक साथ गिरे। ऐसा बताइए, जैसे देखो कि मान लीजिए ये एक वैक्यूम ट्यूब है, वैसे तो ये वैक्यूम नहीं है, लेकिन इसमें ये वाली वैक्यूम है। अब देखो इसमें दो तरीके की ट्यूब है, तो इसमें देखिए दो चीजें, क्या क्या पड़ा है, क्या आपको इसमें दो चीजें दिख रही हैं? एक है कबूतर का पंख और एक स्टोन जैसा दूसरा चीज पड़ा है। तो एक इसमें पहले गिरेगा और एक बाद में। अगर देखेंगे तो एक चीज जो पत्थर वो पहले गिरेगा, देखना, फिर बाद में गिरेगा कबूतर का पंख की नहीं, तो आप इसे देख रहे हैं। जबकि ये बिल्कुल ये वाली फाइन सील है इसमें वैक्यूम। तो ये बात गैलीलियो ने बताई कि अगर वैक्यूम में कोई चीज स्पेस में जाए तो मास से रिलेट नहीं करती है। ये देखो वैक्यूम सील है। अच्छा, अब ये देखो क्या क्या दिख रहा है, एक आयरन पीस दिख रहा है और एक कबूतर का पंख दिख रहा है, ये एक साथ। समझ में आई बात क्या है? तो अब हमने ऑब्जर्वेशन किया, ये देखो ये वैक्यूम सील है। तो दैट इज सीन फ्रॉम पीज़ा's मीनारेट। पिज़ा की मीनार होती है ना जो झुकी हुई है, दैट इज लीनिंग टावर ऑफ पिज़ा। उन्होंने दो चीज गिराई, फिर कैलकुलेट किया कितना ड्रैग है कितना क्या, तो ऑब्जर्वेशन किया कि नहीं। तो पहला है साइंटिफिक और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, फिर एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट करके देखा, तब तो लॉ बनाया, ठीक है कि नहीं? एक साथ गिरे कि नहीं? तो इस तरीके से तीसरी चीज क्या हुई, पहली सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, फिर आप क्या करोगे उसके बाद एक्सपेरिमेंट। क्या 8-10 बार न्यूटन ने सेब नहीं गिराया होगा, लिखने से पहले गिराया तो जरूर होगा ना, एक्सपेरिमेंट तो किया होगा कि नहीं किया होगा। सो थर्ड इज, सेकंड इज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट भी आपने कर लिया, देख लिया, एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। लैब तो होती है, साइंस होगी तो लैब तो होगी, शायद बायोलॉजी होगी, हर एक चीज में साइंस इन्वॉल्व है। ज्योग्राफी में, किसी भी चीज में कि सॉइल टेक्सचर क्या है, इसका प्रोफाइल क्या है, उन सब में साइंस है। अब देखो तीसरी चीज क्या है, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रीजनिंग। कोई चीज गिर रही है तो आप रीजन बताओ। तो जैसे अगर सिर्फ ये कह दो भाई कोई चीज ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से गिर रही है, तो ये हुआ क्वालिटेटिव रीजनिंग। कितना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन है, कितना एक्सेलरेशन है, कितना फोर्स है, इसको कहेंगे अब क्वांटिटी पे आ गए। एक चीज है कि क्यों हो रही है, इंद्रधनुष बन रहा है, रेनबो बन रहा है, कौन कौन से कलर है, कैसा है, क्यों बन रहा है, उसका रीजन भी दो। ठीक है, वो इतना बेंड होता है, वो उतना, जैसे प्रिज्म में नहीं होता है, वॉयलेट ज़्यादा बेंड हो जाता है, इस वजह से ये सब है, और ये चीज़ टॉप है, ये बिलो में, ऐसे बता देना। लेकिन कितना कितने एंगल पर कौन बेंड हो रहा है। तो तीसरी चीज़ है, जब आपने ऑब्जर्वेशन किया उसका आप रीजन दो। अच्छा, किसी का रीजन ऐसा होता है जो रिफ्यूट हो जाता है, यानी रिजेक्ट। सम थ्योरीज आर रिफ्यूटेड बट सम थ्योरीज आर कॉग्निटेड। कुछ चीज़ों का या कुछ प्रेक्षणों का संज्ञान लिया जाता है, ये तो सही थ्योरी है, और कुछ रिफ्यूट कर दी जाती है, रिजेक्ट कर दी जाती है, ठीक है कि नहीं। तो तीसरी चीज़ क्या है कि क्वालिटेटिव and quantitative reasoning
देखा, पहले देखा, फिर उस चीज को परखा, फिर बताया, देखा, जांचा और फिर उसको बताया कि नहीं कि क्या कारण है। अब आगे क्या करोगे साइंटिफिक मेथड में? मैथमेटिकल मॉडलिंग। अगर आप कह रहे हो नहीं ऐसा ऐसा होता है तो ये मॉडल जरूर किसी उन्होंने गैलीलियो नहीं बनाया होगा। बोले हम तो क्लेम करते हैं वैक्यूम में एक साथ गिरेंगे, यहाँ से नहीं गिर रही हैं पिज्जा से, लेकिन अगर ये यहाँ पर एयर ड्राइव ना होता तो एक साथ गिरती। तो ठीक है मॉडल बनाओ, दिखाओ। आप जब भी कहीं पर भी कोई विज्ञान भवन में जाते हो, बहुत सारे ऐसे होते हैं कि नहीं वहाँ जगह जगह बहुत कुछ हो रहा है, वो सब मैथमेटिकल मॉडल ही तो हैं। और यहाँ भी जो सजे रखे हैं ये सब क्या मैथमेटिकल मॉडल नहीं है? इट इज़ ओनली टू अंडरस्टैंड यू बेटर। तो ऐसा उसे करना पड़ेगा साइंटिस्ट को, सबको बताने के लिए कि ये देखो हमारा मॉडल उसी पे काम कर रहा है। एंड ऑल मशीन्स आर मॉडल ओनली, सम आर सिमुलेटर्स एंड सम आर वर्किंग ऑल्सो। अगर मिनिएचर एयरक्राफ्ट है तो मॉडल है, और असली में उसमें बैठा दो तो फिर वो वर्किंग एयरक्राफ्ट हो गया। ठीक है कि नहीं? सो इसलिए चौथी चीज क्या है? मैथमेटिकल मॉडलिंग। नाउ अब आपने मॉडल भी बना लिया, फिर क्या करोगे? मॉडलिंग कर ली, प्रिडिक्शन। नाउ आपको प्रिडिक्ट करना है। अगर आपने मॉडल बनाया, लॉ बनाया, अब आप कहोगे मैं देखो मैं ये पेन गिरा रहा हूँ, ये 1 सेकेंड 1 सेकेंड 1.13 सेकेंड में गिरेगा। तो लोग कहेंगे अच्छा गिराओ देखें, अगर गिर गया इतने में तो तुम्हारा सही माना जाएगा। अब आपने गिराया, लोग टाइम नोट कर रहे थे स्टॉप वॉच से, सब चीज़ों से, कैमरे से, और उन्होंने देखा अरे ये तो जो बताया नील्स बोर ने, ये बिल्कुल सब उसी के हिसाब से हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, वेलोसिटी है, रेडियस है, जरूर। और जबकि उनकी हाइपोथेसिस थी, वो जो तीसरा बोर्स मॉडल ऑफ एटम हमने पढ़ा ना 9th में, वो हाइपोथेसिस थी, लेकिन उन्होंने जो चौथी प्रिडिक्शन किए वो उनके सारे प्रिडिक्शन सही थे, लोग उनको मान गए। बोले आप तो प्रिडिक्शन, वो कहते हमें इसका प्रूफ नहीं पता, पता नहीं कैसे होता। बाद में लोगों ने वेरीफाई किया कि हाँ ये तो ठीक ही किए थे। सो कई बार ऐसा होता है कि हम अपने कॉग्निशन, संज्ञान से जान लेते हैं ऐसा ऐसा होता होगा। समझ में आई कि नहीं? थोड़ी चीज़ें एंटिसिपेट जो है वो आप ये देखो कि जो आइंस्टीन ने भी की है, ऐसा नहीं है कि वो ने जो भी थ्योरी दी है वो रिलेटिव थ्योरी ऑफ मोशन है ना, तो उसमें कुछ ना कुछ चीज़ें तो उन्होंने क्या किया होगा, वो एंटिसिपेट पूरी थ्योरी तो नहीं दे पाएंगे, लेकिन उनकी जितने भी प्रिडिक्शंस थे वो सारे कैसे पाए गए? करेक्ट प्रिडिक्ट आपको करना पड़ेगा कि आगे ऐसा होगा, ये तुम करके देख लो ऐसा ही होगा। प्रिडिक्शन का मतलब अनुमान होता है, फोरकास्ट होता है कि नहीं होता है? तो दैट इज फोरकास्टिंग। एंड आफ्टर दैट जब प्रिडिक्शन कहेंगे देन अब बात आती है वेरिफिकेशन एंड फाल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। यू आर नॉट द लास्ट पर्सन टू मेक ए लॉ। आपके बाद भी लॉ बनते रहेंगे और पहले भी। आपने पढ़ा थॉमसन एटॉमिक मॉडल, रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल, फिर नील्स बोर एटॉमिक मॉडल, उसके बाद श्रोडिंगर का आएगा, फिर हीज़ेनबर्ग का आएगा, और 7 मॉडल आ चुके हैं। तो ऐसा नहीं है कि बोर के मॉडल पे खत्म हो गया, फिर उसको किसी ने फाल्सिफाई किया अपनी थ्योरी। उनको भी तो नाम कमाना है, उन्हें भी तो नोबेल प्राइज लेना है कि नहीं लेना है? समझ में आई बात कि नहीं? तो इसलिए या तो कुछ लोग आपकी थ्योरी गलत साबित करने जाएंगे और सही साबित कर बैठेंगे। ऐसे भी कई केस में कि लोगों ने क्या किया है कि देखना मैं इनको झुठला दूंगा, बट ऐसे कई एक्सपेरिमेंट है ये तो सही है, ऐसा फाल्सिफाई करने के चक्कर में वो लास्ट में बता दिया और उसमें भी नोबेल पाया। ये थ्योरी ठीक है, देखो ये हमने ऐसा ऐसा करके कर दिया, वहाँ भी नोबेल मिल जाए। तो आप समझ गए नेक्स्ट क्या है? उसके बाद वेरिफिकेशन भी हो सकता है थ्योरी का और फाल्सिफिकेशन भी हो सकता है। ठीक है, तो ये 6 स्टेप्स आते हैं, वेरिफिकेशन और फाल्सिफिकेशन ऑफ थ्योरी। देखो थ्योरी में लिख रहा हूं बार बार क्योंकि ये उसका एक तरीके का रीजनिंग है। बात समझ में आ गई कि नहीं? अभी लॉ नहीं है, जब सारे लोग वेरीफाई कर लेंगे और उसे करेक्ट पाएंगे और उसका कोई भी एनॉमली ना पाई गई, अपवाद ना पाया गया, एक्सेप्शन ना पाया गया, तब लॉ माना जाएगा। तब तक थ्योरी ही रहेगी। ठीक है, ऐसी बात हो गई। आप मुझे कुछ स्टेप्स बता सकती हैं क्या साइंटिफिक मेथड? बताओ बिना देखे। हाँ, बेसिक्स में से कुछ बताओ। तो ऑब्जर्वेशन, साइंटिफिक सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, जो क्वालिटेटिव
और क्वांटिटेटिव है। फिर उसके बाद इसको परखना, यानी बोलो आयुष। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल एक्सपेरिमेंट, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिजल्ट, मैथमेटिकल मॉडलिंग, प्रिडिक्शन, वेरिफिकेशन एंड रिपीट करो। सिस्टमैटिक ऑब्जर्वेशन, कंट्रोल, क्वालिफिकेशन। चलो अब आगे देखिए, कितनी बार समझ आ गई? ये 6 स्टेप्स हो गए। अब आगे देखिए, चलिए। अब यहां पर क्या है? थ्योरी इज अपग्रेडेड इनटू ए लॉ when there is no exception is found and it is expected that no exception will be found in future. तो थ्योरी छोटी होती है और लॉ क्या होता है? बड़ा। सो लॉ नेवर फेल। बात समझ में आ गई? सो थ्योरी इज अपग्रेडेड इनटू लॉ when no exception of it is found. ठीक है? तो ऐसे जैसे बहुत सारी चीजें होती हैं कि थ्योरी भी कुछ चीजें होती हैं। तो जैसे बोर एंड बरी की थ्योरी थी कि किस तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 18 होते हैं, फिर 32 होते हैं। ये थ्योरी है, जबकि न्यूटन्स के लॉ हैं। इसी तरीके से हम लोगों ने आपको बताया था जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है, एक्सीलरेट करता है, तो अपनी एनर्जी रेडिएट करता है, धीरे धीरे वो गिर जाएगा। तो रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था वो क्यों फेल हुआ? वो मैक्सवेल की थ्योरी से फेल हुआ कि इलेक्ट्रॉनिक चार्ज पार्टिकल है और वो एक्सीलरेट कर रहा है। भाई डायरेक्शन बदल रहा है तो एक्सीलरेट हुआ कि नहीं? तो वो अपनी एनर्जी रेडिएट कर रहा है। धीरे धीरे एनर्जी कोई रेडिएट करेगा या लूज करेगा तो धीरे धीरे पास आएगा न्यूक्लियस के, उसी में गिर जाएगा, सिंक हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन स्टेबल नहीं है, उसकी कोई फिक्स्ड ऑर्बिट नहीं है। दोनों बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए जो रदरफोर्ड का मॉडल है वो किसकी थ्योरी की वजह से फेल हुआ? जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी की वजह से, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी। तो थ्योरी है, अभी भी वो लॉ नहीं बनी अभी तक, उसमें एक्सेप्शन मिल चुके हैं। लेकिन न्यूटन्स के क्या है? लॉ। बोलो ठीक है कि नहीं? तो जेम्स मैक्सवेल एग्जांपल क्या है कि जेम्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है। क्यों? क्योंकि जो पूरी कॉन्फ्रेंस या ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट है उन्होंने अभी तक इसे लॉ नहीं माना। बोला इसमें तो एक्सेप्शन है, तो लॉ मानेंगे? तो थ्योरी, और वो हमने बता दिया कि जब चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा देन इट रेडिएट्स एनर्जी। सन में चार्ज पार्टिकल ऐसे से घूम रहा है और उससे कितनी सारी एनर्जी निकल रही है, वहाँ कुछ और नहीं घूम रहा है, चार्ज पार्टिकल। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो अब दूसरा क्या है? न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो वो लॉ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्स में ही पूरा लागू हो गया ऑफ ग्रेविटेशन। अब देखें ना, ये तो बात हो गई कि थ्योरी क्या होती है, अब लॉ क्या होता है। दीज टू थिंग्स वी हैव सीन। नाउ फर्दर देयर आर in physics 2 basic principles are there in physics. अभी तक हम लोगों ने साइंस के बारे में देख लिया, साइंटिफिक मेथड क्या होता है, फिजिक्स भी देख लिया। अब फिजिक्स क्या है? तो फिजिक्स के 2 बेसिक प्रिंसिपल क्या क्या? दैट इज फिजिक्स हैज 2 बेसिक प्रिंसिपल। सारे फिजिशियन जितने भी फिजिक्स में काम करने वाले हैं वो इन्हीं दोनों पे काम कर रहे हैं। बेसिक प्रिंसिपल्स
वो कौन कौन से हैं? यूनिफिकेशन, और सेकंड क्या है? रिडक्शन। ये दोनों चीजें क्या है? फिजिक्स इन्हीं दोनों चीजों पे चलती है। जैसे कि ये बात आइंस्टीन ने बताया था, दो दिस वर्ल्ड इज इनकम्प्रीहेंसिबल, लुक इनकम्प्रीहेंसिबल बट इट इज कम्प्रीहेंसिबल। पहला क्वेश्चन है इस चैप्टर का, एक्सरसाइज का। यद्यपि ये दुनिया दिखने में एक अबूझ पहेली है, तब भी इसे समझा जा सकता है। दो दिस वर्ल्ड लुक इनकम्प्रीहेंसिबल, कुछ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, बट इट इज कम्प्रीहेंसिबल। न्यूटन ने बताया कि वी आर ए लिटिल बॉय who is walking on a shore and has picked up some shining pebble and thinking that this is only inside sea. तो क्या सी के अंदर वो चमकते हुए पत्थर ही है बस? क्या तो हम साइंस में इतना ही जानते हैं। न्यूटन जबकि कितना जानते थे, लेकिन उन्होंने बताया कि हम बस इतना ही जानते हैं यूनिवर्स के बारे में। लिटिल बॉय ने कुछ उठा दिया, एक सीप उठा दिया, समझ में आ गया? तो अब यूनिफिकेशन का क्या मतलब है? कि चीजें अलग अलग चल रही हैं। जैसे कि सन के चारों तरफ कौन रिवॉल्व कर रहा है? अर्थ। और उस अर्थ के चारों ओर कौन रिवॉल्व कर रहा है? मून रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, अच्छा, इन सभी के पीछे लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। जो सेलेस्टियल बॉडी हैं उनको आपस में कौन अट्रैक्ट कर रहा है? ग्रेविटी। और इस पेन के गिरने के पीछे भी क्या है? ग्रेविटी। और इसके अलावा जो टाइड्स आते हैं दिन में 2 बार, एक सुबह आता है एक शाम को आता है, तो कभी मून ऊपर आ जाता है तो पानी ऊपर उठ जाता है, और कभी सन आ जाता है ऊपर दोपहर में तो भी उठ जाता है। तो पानी का ऊपर उठ जाना ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से, तो ये टाइड आ जाते हैं, हाई टाइड्स। इट इज ऑल्सो ग्रेविटी। वी आर वॉकिंग ऑन अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी। तो डिफरेंटली लुकिंग फिनोमिना फॉर टेरेस्ट्रियल बॉडीज एंड सेलेस्टियल बॉडीज ऑल आर गवर्न्ड बाय ग्रेविटी। ये बात किसने बताई? न्यूटन ने। तो बोलो यूनिफाई कर दिया कि नहीं चीजों को? फिर आप देखो 10th में आपने पढ़ा, ओर्स्टेड ने क्या किया? उन्होंने बार बार क्या किया? स्विच ऑन ऑफ किया और बगल में मैग्नेट रखा। बोला देखो मैं लाइट कम ज्यादा कर रहा हूँ, मैग्नेट कंपास हिल रही है। यानी जब इलेक्ट्रिसिटी चलेगी तो क्या होगा बताइए? व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासेस देन इट क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड and that magnetic field interacts with magnetic field of compass, that's why it reflects. तो अब उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म ये दो अलग अलग फिनोमिना नहीं है, एक से दूसरा इंटर रिलेटेड है। यानी इलेक्ट्रिसिटी होगी तो वो मैग्नेटिज्म क्रिएट करेगी। फिर फैराडे ने दूसरी बात कह दी, अगर ऐसा है उन्होंने कहा तो उल्टा भी सही है। अगर मैग्नेटिक कोई चीज होगी और उस मतलब आप एक लूप में मैग्नेट फेंकोगे तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। या किसी चीज को आप घुमाओगे मैग्नेट को तो उससे क्या होगा? मैग्नेट को अगर लूप है, लूप में क्या है? जैसे ये चीज देखिए, तो इसमें ये बात बताई गई कि जो भी हमारे ट्रांसफार्मर है या ऐसे कोई भी इक्विपमेंट है, तो उन्होंने कहा कि मैग्नेटिक फील्ड चेंज करो। उल्टी बात कह दी। बोले आप ये कह रहे हो कि इलेक्ट्रिसिटी चेंज करो तो मैग्नेटिज्म होगा। उन्होंने दूसरी बात बता दी, कह दिया कि अगर आप इस लूप के अंदर से, जैसे ये देखो, तो इन्होंने कहा भाई यहाँ पर 2 मैग्नेट अलग अलग लगे हैं नॉर्थ और साउथ में, और मैं ये मैग्नेट इस पर अगर कोई चीज़ चिपकाओगे ना, ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेट है, सर्कुलर मैग्नेट। ये क्या है कि अगर कोई आयरन की चीज़ हो तो इसमें चिपकाओ तो चिपक जाएगा। ठीक है, आयरन की होनी चाहिए। ये देखो हो रहा है। तो अब अगर इसके अंदर चिपका के देख लो, बोला कि नहीं? तो इसका मतलब इन्होंने कहा कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेट के अंदर फील्ड जाती है। मैग्नेट के अंदर क्या बहुत सारी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नहीं जाती सर्कुलर में। तो अगर वो चेंज करोगे, अगर मैं इसको घुमा दूं तो क्या चेंज नहीं होगी फील्ड? ये देखो, ये तो क्या राइट नहीं होगी? मैग्नेटिक फील्ड, मैंने मैग्नेटिक फील्ड चेंज की और उधर क्या चल रही बताओ? लाइट। तो अब इन्होंने बताया, फैराडे ने क्या किया बताओ? कि इफ मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस
ये तो मैग्नेटिक फील्ड चेंज करने से लाइट पैदा हो गई। तो बोलो क्या दोनों को इंटर रिलेट कर दिया कि नहीं? लेकिन बात अभी अधूरी थी। ओर्स्टेड ने क्या किया? इलेक्ट्रिसिटी को मैग्नेटिज्म से रिलेट किया और इन्होंने कहा मैग्नेटिज्म को इलेक्ट्रिसिटी से रिलेट किया। दोनों ने कहा बोथ आर गवर्न्ड बाय सेम लॉ। जब दोनों एक दूसरे से होते हैं, मैक्सवेल ने एक और काम कर दिया, बोला कि अगर चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट करेगा तो वही इलेक्ट्रिक फील्ड भी पैदा करेगा और वही क्या करेगा? मैग्नेटिक फील्ड भी। सन पे चार्ज पार्टिकल एक्सीलरेट कर रहा है और अर्थ के सबसे बाहर आयनोस्फीयर है, उसके वहां इलेक्ट्रॉन में इधर उधर आने से यहाँ के आयनोस्फीयर में सारे एटम के इलेक्ट्रॉन छिटक गए हैं और वो आयन बन गए, नाम पड़ गया आयनोस्फीयर। जैसे मान लो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है और तुम यहाँ इसको ऐसे ऐसे करो तो क्या यहाँ है तो ये इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं भागेगा, और यहाँ आ जाए तो वैसे नहीं भागेगा, और ये वहाँ अगर ऐसे ऐसे करे तो ये इधर उधर होना चाहेगा। तो वहाँ पर तेजी से हो रहा है तो अर्थ के जो चारों तरफ गैसेज हैं उनके इलेक्ट्रॉन भी वाइब्रेट करने लगे, क्योंकि सन में प्लाज्मा है। प्लाज्मा का मतलब आयन जो बहुत तेजी से 10⁻⁷ केल्विन के टेम्परेचर पे ऐसे से एक्सीलरेट कर रहे हैं। तो उसकी वजह से जब उसने ऑसिलेशन किया तो छिटक के गिर गया। तो सारे जितनी गैसेज हैं वो अब क्या हैं? आयंस हैं। समझ में आ गई? तो इसका मतलब है कि वहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसने इसको प्रभावित किया, इट हैज़ अफेक्टेड इट। एंड आल्सो इलेक्ट्रिसिटी अगर पैदा हो रही है तो अंडरस्टूड है कि मैग्नेटिज्म भी होता होगा। और उन्होंने कहा चार्ज पार्टिकल के एक्सीलरेट होने से क्या लाइट भी पैदा हो गई क्या सन से? तो उन्होंने कहा सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी मैग्नेटिज्म ही यूनिफाइड नहीं है, उन्होंने कहा लाइट को भी डालो इसमें, लाइट भी है। बोलो तीनों चीज़ों को सिंपल कर दिया कि नहीं? तो यूनिफिकेशन का मतलब क्या है कि बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं लेकिन उसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, उसमें सिर्फ आपको ये देखना है कि काइनेटिक एनर्जी कितना उठी, कितना गिरी, कितना रोटेट की। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पर ही चल रही है। एंड द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी इज कॉल्ड मैकेनिकल एनर्जी। दुनिया की जितनी मशीनें हैं, अगर किसी को ½ mv² काइनेटिक एनर्जी होती है और पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कोई चीज़ ऊपर रखी है तो उसमें पोटेंशियल गिरे तो काम कर दे, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है। जिसे ये दो चीज़ पता चल गई तो वो मैकेनिकल एनर्जी के बारे में जान जाएगा, सारी मशीनों के बारे में जान जाएगा, वो मैकेनिक्स बन जाएगा, मैकेनिक बन जाएगा। वो बात समझ में आ गई कि नहीं? सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी एंड अबाउट इंटरप्ले अबाउट देम, उनके बीच के जो आपस के खेल को समझ गया कि हाउ दीज आर गेटिंग इंटर कन्वर्टेड इनटू वन अनदर फॉर्म, तो वही मैकेनिक्स है। उस ब्रांच को क्या कहेंगे? मैकेनिक्स। समझ में आई? तो अब हम लिखते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन की डेफिनेशन नाउ दैट इज now unification if by single physical law we can explain differently looking phenomena then it is called unification। उसी चीज़ के लिए बोलते हैं ये न्यूटन, हाँ हम अभी समझाते हैं सेलेस्टियल बॉडी क्यों कैसे घूम रही, कब कौन कहाँ आएगी, कॉपरनिकस बता देते हैं, केपलर बता देते हैं, वही सिद्धांत चल रहा है ग्रेविटेशन का। सब एक दूसरे के बाद कॉपरनिकस के शिष्य केपलर थे, तो इस तरीके से फिर आगे बढ़ता चला गया, फिर न्यूटन ने ग्रेविटी का सिद्धांत दिया। समझ में आई बात कि नहीं? सो व्हेन बाय सिंगल फिजिकल लॉ, क्या उसी ग्रेविटेशन लॉ से उन्होंने सेलेस्टियल को भी बताया और टेरेस्ट्रियल को भी बताया? तो डिफरेंटली लुकिंग फिनोमिना को क्या एक ही लॉ से बता दिया? अब मैक्सवेल ने क्या कर दिया? तीनों को यूनिफाई कर दिया। और उन्होंने ओर्स्टेड को भी उठाया, फैराडे, माइकल फैराडे को उठाया, 2-4 अपने लिखे और तीनों को यूनिफाई कर दिया। बोला अब आज से लाइट, इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म 3 अलग ब्रांच मत मानना, एक ही मानना, क्योंकि ये सब मेरे जो उन्होंने 4 मैक्सवेल थ्योरी दी थी ना, जेम्स मैक्सवेल की 1919 में आई थी, उस समय हम थे और बड़ा पॉम्प एंड शो हुआ था, मैक्सवेल ने थ्योरी दी है और न्यूज़ नेशनल टीवी पे आता था, डीडी पे, जेम्स मैक्सवेल की थ्योरी, तीनों को यूनिफाई कर दिया।
लाइट को इससे यूनिफाई कर दिया, बड़ी वो हम समझ ही नहीं पाते थे क्या बताया जा रहा है, आज समझ में आता है। तो 1990 की थ्योरी 4 सिद्धांत दिए थे और कुछ नहीं। न्यूटन का जानते हो, एरिस्टोटल का पहला सिद्धांत था लॉ ऑफ इनर्शिया, उसको चोरी कर लिया और बाकी 2 अपने दे दिए। 3 लॉज ऑफ मोशन बनाया था कि नहीं, 9th में पढ़ा है वो। उन्होंने कहा था लॉ ऑफ इनर्शिया की जो कोई चीज़ चल रही है तो चलती रहेगी, रुकी है तो रुकी रहेगी, जब तक कि एक्सटर्नल फोर्स में लगा जाए, है कि नहीं। तो मतलब आपको कुछ नहीं करना, यूनिफाई ही करना, उसी में आप सक्सेसफुल हो। जेम्स वर्क्सल का क्यों नाम हुआ, सबको एक जगह समेट के रख दिया। इफ बाई ए सिंगल फिजिक्स लॉ ऑफ फिजिक्स, सिंगल लॉ यू कैन एक्सप्लेन डिफरेंटली लुकिंग फिनोमिना, देन इट इज कॉल्ड यूनिफाई। समझ में आ गई, रिपीट करो। If you can explain simple looking phenomena, इफ यू कैन एक्सप्लेन, simple आप बताओ सिंपल कहाँ से देगा, डिफरेंटली लुकिंग फिनोमिना नहीं बोलोगे हाँ, क्या, तीनों आपको सेम लग रहे हैं क्या? मैंने फिर से बोलो। if you can explain differently looking phenomena by a simple physics law, सिंगल फिजिकल लॉ, देन इट इज कॉल्ड unification, फिजिक्स के 2 मेन प्रिंसिपल क्या है? unification और physics। याद रखा करो, रिटेंटिविटी रखो। सो इफ, ठीक है, वी कैन एक्सप्लेन डिफरेंटली लुकिंग फिनोमिना by single physical law, then it is called, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे एकीकरण का सिद्धांत। कि आपने जो डिफरेंट चीजें थी उनको एकीकृत कर दिया है, एक ही संविधान के अंदर लाकर खड़ा कर दिया है, बात की नहीं। आगे देखें तो ना ओके, फॉर एग्जाम्पल जेम्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है, पहले तो यही बताओ तो हम आगे बढ़ें। कुछ बता सकती हो दिव्यांशी, थोड़ा सा बताओ। जेम्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है? बाई जेम्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी कौन सी है? दैट एक्सिलरेटिंग चार्ज पार्टिकल रेडिएट्स एनर्जी। कोई भी पार्टिकल एक्सिलरेट कर रहा हो, एक ही स्पीड से ना चले, या तेज हो या धीमा हो या डायरेक्शन बदले तो उसे एक्सिलरेशन कहते हैं। बात समझ आई कि नहीं? एक स्पीड से चलेगा एक ही डायरेक्शन में तो यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है। तो व्हेन चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट, चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट, इट रेडिएट्स एनर्जी। सन में हो रहा है ये चीज, तो सन में जैसे हमारे पास से प्लाज्मा बॉल है तो इसमें लाइट वैसे ही जब इसको ऑन करते हैं तो वही चीज बन जाती है जो इसका, ठीक है कि नहीं? प्लाज्मा बॉल यहाँ पर भी है, अगर मैं इसको चला के दिखाऊं ये वही काम करेगी, इसमें प्लाज्मा क्रिएट हो जाएगा। ऐसे सन में प्लाज्मा निकल जाएगा, है कि नहीं? तो ये वही चीज है, जैसे सन में प्लाज्मा है वही प्लाज्मा यहाँ पर, ठीक है, उसी का बड़ा मामला। तो अब क्या चीज़ है प्लाज्मा? मतलब इसमें सब चीज़ें आयनाइज है। प्लाज्मा का मतलब क्या? आयंस, फुल ऑफ आयंस, ठीक। सो जरा देखो, ये चार्ज पार्टिकल है और अगर ये एक्सिलरेट करेगा,
रदरफोर्ड का मॉडल है। तो जब ये चलेगा तो क्या अपनी डायरेक्शन बदलेगा? कोई भी चीज पे तो फोर्स लग रहा है ना। अब फोर्स लगेगा तो क्या एक्सीलरेशन नहीं होगा? कैसे होगा? क्योंकि F इज इक्वल टू क्या होता है? ma। कोई भी चीज पे धक्का दोगे तो वही चीज की स्पीड तो बढ़ेगी ना। या तो स्पीड बढ़ेगी या डायरेक्शन बदलेगी। डायरेक्शन भी बदल सकती है। तो किसी चीज की सर्कुलर मोशन में भी फोर्स लगा के चीजों की डायरेक्शन बदली जाती है। अच्छा, जब ये एक्सीलरेट कर रहा है तो क्या इसमें से फोटॉन के पैकेट रिलीज होंगे? एनर्जी के पैकेट। फोटॉन कुछ नहीं है, सन से फोटॉन के पैकेट आ रहे हैं हमारे पास। क्या आ रहे हैं बताइए? एनर्जी के पैकेट। जो लाइट है ना वो फोटॉन है। तभी तो जगह जगह उसको कहते हैं कि फोटोग्राफ ले लो, लाइट से ले लो, सब चीज़। फोटो का मतलब क्या है? उसी फोटॉन से तो बना है। समझ में आई बात कि नहीं? तो इसमें से क्या चीज़ निकल रही है? क्या एनर्जी के पैकेट क्यों निकल रहे हैं? क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है? मूव कर रहा है, मूव एक्सेलरेट कर रहा है। एक्सीलरेट, है ना। मूव तो यूनिफॉर्म भी होता है, तब नहीं कुछ करेगा। अच्छा, जैसे जैसे फोटोन निकलेंगे तो क्या इसकी एनर्जी कम होगी? इसके पास ज़्यादा एनर्जी है यहाँ पर कि यहाँ पे? तो अगर एनर्जी कम होगी तो क्या वो अट्रैक्शन की वजह से और पास आएगा? तो अब वो धीरे धीरे इसके पास आएगा कि नहीं? और पास आके अंत में क्या होगा? इसी में नहीं गिर जाएगा? पास आएगा क्योंकि एनर्जी लूज कर रहा है ना। और इन्हें क्या कह रहे हो? फोटॉन के पैकेट, जो कि एनर्जी के पैकेट है। और ऐसा 10⁻⁻8 सेकंड में हो जाएगा। तो लोगों ने मजाक उड़ाया कि रदरफोर्ड का मॉडल तो 10⁻⁻8 सेकंड से ज़्यादा स्टेबल ही नहीं। बात समझ में आई कि नहीं? तो इसलिए, और ये थ्योरी क्या है मैं एक बार फिर आपसे जानना चाहूँगा, जेम्स मैक्सवेल की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी क्या है? स्टेट करिए। जब चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेट करता है तो एनर्जी रेडिएट होती है। सो जेम्स मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी यूनिफाइड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। रिपीट करो। जेम्स मैक्सवेल थ्योरी यूनिफाइड लाइट, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। थोड़ी यूनिफिकेशन समझ में आ गया? ये लिख लो, यूनिफाइड। किसको किसको यूनिफाइड किया? लाइट, लाइट को। इलेक्ट्रिसिटी। और जब ये तीनों डिफरेंटली लगते हैं ना, एंड मैग्नेटिज्म। वैसे इसका और भी एक एग्जाम्पल है। जैसे मैंने यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बता दिया है कि उससे टेरेस्ट्रियल एंड सेलेस्टियल दोनों बॉडी को गवर्न कर सकते हो। अब देखो अगली बात क्या है? अगली बात है रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म का मतलब क्या हुआ? कि कोई चीज बहुत कॉम्प्लेक्स लग रही है, बट अगर आप उसे सिंपली एक्सप्लेन करो तो ये रिडक्शनिज्म है। दिखने में बड़ी कॉम्प्लेक्स लगे तो आप कहो कि ये रेनबो कुछ नहीं है। ये क्या होता है कि जब लाइट आती है तो उसका डिस्पर्सन होता है और वो अपने कलर में क्या होता है, उसकी स्प्लिटिंग हो जाती है और इसी वजह से रेनबो बन रहा है। समझा दो कागज पे किसी को, तो बोलो कॉम्प्लिकेटेड लुकिंग फिनोमिना को अगर सरलता से समझाया जा सके, दैट इट इज रिडक्शनिज्म। आप कहीं डॉक्टर के पास जाओ, वो कहे सीटी स्कैन कराओ, एमआरआई कराओ, इससे कम में तो होगा, और एक्सरे भी करा लेना। अच्छा, इसके बाद क्या है ना, लिपिड प्रोफाइल भी कराना। दूसरा कह रहा नहीं, एक ड्रॉप ब्लड का छोड़ जाओ और कल आना दवा ले जाना। तो देखो कितना उसने आसान कर दिया। उसने कहा कि जो भी थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर एंड प्रेशर पे देखो, उसने कहा कि थर्मोडायनेमिक्स क्या है, जरा फिर से देखो कि इसके अंदर जो चार्ज पार्टिकल चल रहा है, यहाँ टक्कर मार रहा है, यहाँ टक्कर मार रहा है, यहाँ टक्कर मार रहा है, इस बात पे, तो अगर इसके पास बहुत ज्यादा स्पीड है तो इसका टेम्परेचर ज्यादा है, और धीरे धीरे चल रहा है जिसमें जहां बहुत ज्यादा स्पीड होगी पार्टिकल में, अब किसी चीज को तुमने टच कर लिया तो उससे जल गया थी। क्यों? क्योंकि वहाँ स्पीड थी, उसने ऐसा कोलाइड किया आग में, उसके पार्टिकल की स्पीड ऐसी थी, वाइब्रेट कर रहा था, तभी तो आपको टेम्परेचर लगा। अब कूल होता, उसके पार्टिकल के पास स्पीड ना होती तो क्या कुछ लगता? सो ग्रॉस इफेक्ट ऑफ मॉलिक्यूल्स इन एनी सिस्टम इज नोन एज हीट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम। वही तो ये बनाते हैं कि नहीं? और उसी चीज को अंदर चले जाओ मॉलिक्यूलर में तो उसे कहते हैं काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी, इसको मॉलिक्यूलर थ्योरी कहते हैं। तो आप उसे रिड्यूस करके पढ़ लो। आप क्यों देखो टेम्परेचर, प्रेशर, एक एटम उठा लो,
एक एटम कोई दे दे, उसी को पढ़ के बता दो इसमें ये जो कंपार्टमेंट है इस कमरे का ये टेम्परेचर होगा, सिर्फ एक गैस को पकड़ लो यहाँ से, तो अच्छा ये ऐसे ऐसे चल रही है, इस कमरे का ये टेम्परेचर होगा, यहाँ इतना प्रेशर होगा, ऐसे ऐसे होगा। बोलो कमाल है कि नहीं रिडक्शनिज्म में। अब बड़ी बड़ी मशीनें चल रही हैं और तो कहते नहीं कुछ नहीं है, ये सिर्फ हाफ mv स्क्वायर का खेल है और mgh का खेल है, दो ही चीज़ें लग रही हैं, काइनेटिक एनर्जी लग रही है और दूसरी पोटेंशियल एनर्जी। तो हो गया कमाल कि नहीं। कॉम्प्लेक्स लुकिंग फिनोमिना कैन बी एक्सप्लेन बाय सिंपल लॉज। इतना कोई कर दे तो यही है, नहीं तो फिर हम जैसे और आप जैसे लोग कभी पढ़ ही ना पाते, फिर तो फिजिक्स कठिन ही कठिन लगती। तो क्या है बताइए रिडक्शनिज्म। दैट इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम। सो रिडक्शनिज्म क्या है? एक्सप्लेनेशन of complex system by properties of its constituent particle। उसको कहेंगे is called reduction। It is called reduction। अब जरा देखो कि रेनबो फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पढ़ाया था आपको 10th में कि कैसे अंदर जाता है लाइट, कैसे वापस आता है सर्कल के अंदर, और फिर यहाँ से लाइट आती है और फिर यहाँ पर सबसे पहले ये आई और यहाँ पर इसका क्या हो जाता है डिस्पर्सन। और डिस्पर्सन में ज्यादा बेंड कौन कर रहा है बताओ? ब्लू। बताओ अब कम बेंड कौन करता है? रेड। तो अब ये ब्लू और ये रेड बेंड कर गया। फिर इसके बाद यहाँ से सेंटर से इसको मिला लो और जितने एंगल पे आएगा उतने वापस जाएगा, और सेंटर से इसको भी मिलाओ तो जितने एंगल पे आएगा ये भी वापस जाएगा। तो इनका वापस चले जाना और फिर वापस जाने के बाद फिर यहाँ से फिर बाहर निकल जाना। तो अब इससे मिलाओ और दूर कर दो। यानी जब भी कोई चीज़ एक ऑप्टिकली डेंसर से रेयर में जाती है तो दूर हटती है कि नहीं नॉर्मल से? बोलो। ये दिखा दिया। और दूसरे में भी क्या दिखाओ कि जैसे ये है तो इसको भी सेंटर से नॉर्मल डालो और इसका भी दूर हटना दिखा दो, और ये दोनों जहाँ मिलेंगे तो उसको दिख जाएगा रेनबो। है ना आसान? तो हमने कॉम्प्लेक्स लुकिंग रेनबो फॉर्मेशन को किससे बता दिया? बाय सिंपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। तो हो गया नहीं रिडक्शनिज्म। चलो तो इस तरीके से एग्जाम्पल क्या है कि रेनबो फॉर्मेशन कैन बी एक्सप्लेन बाय सिंपल रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। इसको रिडक्शनिज्म बोलो। प्रॉपर्टीज ऑफ इट कंस्टिट्यूएंट, उसके घटक कणों के द्वारा यदि किसी की गुणों की आप फोरकास्टिंग कर सकते हैं या अनुमान लगा सकते हैं तो उसे क्या कहेंगे? रिडक्शनिज्म। यहाँ पर वही चीज की गई है, रेनबो फॉर्मेशन को दिखाया गया कैसे ये अलग अलग पार्टिकल आ रहे हैं। ना अब हमने ये भी पढ़ लिया है कि फिजिक्स के दो प्रिंसिपल हैं। समझ में आ गई बात आपको? अब आगे देखो कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। दो तरीके की फिजिक्स जरा देखो। जो फिजिक्स है एक
क्लासिकल फिजिक्स है और एक क्या है क्वांटम फिजिक्स। दो तरीके की फिजिक्स है और नहीं। क्या क्या बताइए? क्लासिकल और दूसरी है क्वांटम फिजिक्स। अच्छा, क्लासिकल फिजिक्स प्री 1890 है और ये क्या है पोस्ट 1890। क्लासिकल फिजिक्स में बड़े बड़े पार्टिकल के बारे में चर्चा की जाती है, जैसे कार कैसे चल रही है, बॉल फेंकी गई, बड़े बड़े पार्टिकल जिनका साइज 10⁻⁻6 मीटर से बड़ा हो, या मिलीमीटर जानती हो, उसके 1000वें हिस्से से बड़ा हो, मतलब साइज बड़ा हो। अब उसमें छोटे छोटे पार्टिकल जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, उन पे लगती क्वांटम फिजिक्स। समझ आएगी वो कैसे चल रहे हैं, उनकी स्पीड क्या होगी, उनकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, वहां जाओगी तो क्वांटम है, ठीक है। और ये क्लासिकल, वहां सब चीजें फिक्स है। अगर इलेक्ट्रॉन होगा ना उसके चारों तरफ तो उसकी एनर्जी फिक्स है, या तो ये होगी एनर्जी, या ये होगी, या ये होगी। यानी अगर आप दूध का पैकेट लेने जाओगे तो आधा लीटर का उपलब्ध है, 1 लीटर का, फिर 2 लीटर का। आप उससे ये नहीं कहोगे कि 600 ml दे दो, पैकेट फाड़ के दे दो। वहाँ पैकेटाइज्ड है चीज़ें, यानी अलग अलग ऑर्बिट जो है उसके इलेक्ट्रॉनों की डिस्क्रीट एनर्जी है। भाई बोर मॉडल नहीं पढ़ा कि इन डिफरेंट ऑर्बिट्स इलेक्ट्रॉन्स आर हैविंग डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स। कोई तो डिस्क्रीट का मतलब अलग अलग। अब जैसे 1.3 × 10⁻7 जूल है तो उसके बाद फिर 5.9 ही मिलेगी, बीच की नहीं है कोई। समझ में आई? क्योंकि अलग ऑर्बिट में अलग एनर्जी, तो पैकेटाइज है ना, बीच की तो नहीं ले लोगे उससे। जैसे दूध का पैकेट है या कोई चीनी का पैकेट है, आधा तो कटवा के नहीं ले लोगे, तो वहाँ पैकेटाइज, इसलिए उसका नाम है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम का क्या मतलब होता है? पैकेट। तो वहाँ रेडियस पैकेटाइज्ड है, मोमेंटम पैकेटाइज्ड है, एनर्जी पैकेटाइज्ड है, वेलोसिटी पैकेटाइज्ड, सब कुछ वहाँ पर फिक्स है। इसके बाद ये होगी, इसके बाद ये होगी, तो इसीलिए उसका क्या नाम पड़ गया? अच्छा, वो किस साइज पे एप्लीकेबल है? 10⁻⁻6 मीटर से छोटे, मिलीमीटर के 1000वें हिस्से से भी छोटे। साइज जिनका इससे छोटा हो, फिर वहाँ न्यूटोनियन नहीं लगती, ये न्यूटन की है, ये पूरा न्यूटन ने संभाल रखा। जबकि उसको श्रोडिंजर, हीजनबर्ग और इसके बाद नील्स बोर, इन सब लोगों ने संभाला हुआ, वहाँ उनके प्रिंसिपल लगते हैं। ठीक, तो अब साइज ऑफ पार्टिकल क्या होना चाहिए बताइए? 10⁻⁻6 लेस देन, है ना, 10⁻⁻6 मीटर। और स्पीड कितनी होनी चाहिए? 10⁻6 मीटर पर सेकंड। बड़ी तेज चले। जो हाइड्रोजन का एटम होता है, मालूम है वो अपनी ऑर्बिट में किस रफ्तार से चलता है? व्हाट इज इट्स स्पीड? 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड। ज़्यादा है। स्पीड ऑफ पार्टिकल ग्रेटर देन और साइज ऑफ पार्टिकल लेस देन। और सही, छोटा पार्टिकल बड़ी स्पीड। और यहाँ क्या है? क्लासिकल किस पे एप्लीकेबल है? बड़ा पार्टिकल छोटी स्पीड। तो साइज ऑफ पार्टिकल greater than -6 मीटर and speed of particle, ओके, कितने मीटर पर सेकंड, तब क्लासिकल लगेगी। अच्छा, क्लासिकल इलेक्ट्रॉन पर लगाओगे तो नहीं काम करेगा, छोटे पार्टिकल पर नहीं काम करेगा, उसमें वेव नेचर आएगा, ठीक है। और यहाँ वेव नेचर इग्नोर कर दिया गया, लेकिन क्वांटम को इस पे लगाया जा सकता है, ये उसकी सुंदरता है। क्वांटम फिजिक्स की क्या ब्यूटी है? इट इज इक्वली एप्लीकेबल। इस पे किस पे एप्लीकेबल है? टू क्लासिकल आल्सो। ये न्यूटन को भी कवर कर लेगा। अब जरा देखो और बातें देखो कि क्लासिकल फिजिक्स कंटेन्स, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर क्या क्या चीजें आ जाएंगी। ना, क्लासिकल फिजिक्स में कुछ ब्रांचेस हैं।
क्लासिकल फिजिक्स इज ओल्डर फिजिक्स, ठीक है। ये एप्लीकेबल किस पर है? ऑन लार्जर पार्टिकल हैविंग लेसर स्पीड। ओके, बात समझ में आई? लेसर, ठीक है, वो हमने आगे किया। अच्छा, ये आपने गौर किया था जब फोटोन मैंने बनाया था तो वेव भी बनाया था। जो छोटे छोटे पार्टिकल है उनमें वेव नेचर प्रोमिनेंट होता है। समझ में आई बात की नहीं? और क्वांटम फिजिक्स क्या होती है, या इसे मॉडर्न फिजिक्स भी कहते हैं क्या? इसकी एक ब्रांच को नैनो फिजिक्स भी कहते हैं या नैनो टेक्नोलॉजी, जो लोग जैसे ही टर्न करते हैं ले तो दैट इज 10 to the power -9। कहते हैं हम तो और छोटा पढ़ेंगे, -6 नहीं जाएंगे, हम तो -9 पे जाएंगे और 1000 का हिस्सा तो ले लेते हैं, कैरियर बना लेते हैं, ठीक। तो इस तरीके से इज एप्लीकेबल ऑन स्मॉलर पार्टिकल ना, हैविंग साइज लेस देन 1 माइक्रोमीटर। ये जो है ये 1 माइक्रोमीटर है, इससे छोटी हो। हैविंग साइज लेस देन 1 माइक्रोमीटर, इसको क्या कहते हैं? माइक्रोमीटर। तो 1 माइक्रोमीटर कितना होता है? 10 to the power -6 मीटर। 1 मीटर का लाख, मिलियंथ का। एंड स्पीड मोर देन 1 मेगामीटर। मेगा जानते हो? 10 to the power 6 को कहते हैं, तो मेगामीटर। तो 1 मेगामीटर कितना होता है? 10 to the power 6 मीटर पर सेकंड। स्पीड की बात है तो पर सेकंड भी आएगा ना, ठीक है। तो आपको इतनी बात समझ आ गई? क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस क्या क्या हैं और क्वांटम फिजिक्स ये भी जानना होगा। तो क्लासिकल की ब्रांच देखो, और क्वांटम फिजिक्स की ब्रांच देखिए। नाउ क्लासिकल फिजिक्स में इट इंक्लूड्स मैकेनिक्स, इसकी ब्रांचेज हैं, ओके। देन इलेक्ट्रोडायनामिक्स, थर्मोडायनामिक्स, ओके, एंड ऑप्टिक्स। चौथी चीज क्या? ऑप्टिक्स का मतलब समझते हो? ऑप्टिक्स, ओके। क्वांटम फिजिक्स तो हम लोगों की जो होती है वो इट इंक्लूड्स नैनो फिजिक्स होगी, बस और कुछ नहीं। मॉडर्न फिजिक्स इनके नाम है और कोई नाम है, तो उन्हीं पे लागू होती है। वो एटॉमिक पार्टिकल, नैनो फिजिक्स, एटॉमिक फिजिक्स, समझ में आया? या फिर क्या कहते हैं? मॉडर्न फिजिक्स, ये इसके नाम है, कोई ब्रांच नहीं है, ओके। व्हाट डज इट मीन बाय मैकेनिक्स? The branch of physics which deals with forces and effect of forces। हमने फोर्स लगाया तो उससे उस पर एनर्जी पे क्या फर्क पड़ा, वर्क डन कितना हुआ, कितना चलेगी कितना नहीं चलेगी, कितना एक्सेलरेशन हुआ, कितनी फाइनल वेलोसिटी, u इज इक्वल टू u प्लस ए टी, ये सब चीज़। फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स, दैट इज कॉज एंड इफेक्ट। कॉज है फोर्स और उसका इफेक्ट है उसमें जो हो रहा है, ठीक। सो इट डील्स विद force
इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ठीक है, इट इज अप्लाइड ऑन रनिंग मशीन, सुई पे चलती है। दूसरी चीज क्या है, इलेक्ट्रोडायनामिक्स क्या है। मैकेनिक्स इज सोलली डेवलप्ड बाय न्यूटन, इतनी बात जान लो। इसको किसने किया। अब पहली बात एक बता दूं, ये जो आपकी ये पहली बुक है, ये पूरी न्यूटन ने लिखी है और इसका आखिरी चैप्टर ग्रेविटेशन भी है। देख लो, ग्रेविटेशन है, सब लॉज ऑफ मोशन। एक बुक न्यूटन को दे दी, भाई तुम ही पढ़ाओ। अब एक बुक में सारे साइंटिस्ट। So it deals with force and effect of forces. It is applicable on machine. ठीक है ये. So it is developed by Newton. Isaac Newton. Isaac. It is Isaac Newton. अब देखिए ओके, तो इलेक्ट्रोडायनेमिक्स क्या है। सो द ब्रांच ऑफ फिजिक्स which deals with moving charges। जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा था ना इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स ही आपने पढ़ लिया। क्या वहाँ मूविंग चार्जेस थे, तो रजिस्टर, वोल्टमीटर, एमीटर सब कुछ पढ़ लिया, वही है। इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रोडायनामिक्स। ठीक है, इट इज डेवलप्ड बाय ओम, जेम्स साइमन ओम। अच्छा, तीसरी चीज क्या है, थर्मोडायनामिक्स। इसमें कई साइंटिस्ट आते हैं। सो विदाउट गोइंग इनटू द प्रॉपर्टीज ऑफ कंस्टिट्यूएंट मैटर, वो ये नहीं देखता कि पार्टिकल की स्पीड क्या है, वो ये देखता है कि हमारी पूरी बॉडी का टेम्परेचर क्या है। हमें क्या लेना देना है इस कमरे का पार्टिकल कैसे मूव कर रहा, हमारे रूम का टेम्परेचर 28 है बस। समझ आई बात कि नहीं, उससे हमें लेना। In this, the gross property of system is studied without going into its depth or constituent particle। उसके बारे में ना जानो, सिर्फ ये देखो इस कमरे में प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, टेम्परेचर क्या है, ठीक है। It deals with temperature, pressure, volume and transfer of heat from one system to other। अगर इस कमरे से हीट बाहर गई है तो कितनी गई है, तो बिल कितना देना पड़ेगा। So it deals with gross property of system। gross का मतलब समझते हो, like temperature, pressure, volume and heat। हीट का मतलब जो एनर्जी एक सिस्टम से दूसरे में ट्रांसफर होती है उसे हीट है। विदाउट गोइंग इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। किसी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल के बारे में जाने बिना अगर हम सिंपली क्या करें कि किसी चीज़ को मेजर कर रहे हैं तो फिर हमें ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है।
जैसे कि ये हमने कोई सिस्टम लिया, जैसे आप लोग टायर में हवा उड़ाती हो स्कूटी में, तो अब क्या करती हो, एक इस तरीके का टायर प्रेशर गेज होता है। तो अब जैसे मैंने ये लगाया, ये ना लगाओ, ये टायर में लगा दो, तो अब ये एनेरॉइड बैरोमीटर है। तो ये क्या है, किसी ने ये चेंज हो रहा है कि नहीं प्रेशर, ये किसी सिस्टम में लगा दो तो उस प्रेशर की वजह से इसमें मीजर कर दो। तो मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, प्रेशर मीजर कर देते हैं, थर्मोमीटर लगा दो तो टेम्परेचर मीजर कर दोगे। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी का प्रेशर टेम्परेचर वैसे मीजर कर सकते हैं। तो बैरोमीटर है, इससे सिस्टम का प्रेशर चेक होता है। तो ऐसे मीजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारे टायर के प्रेशर मीजर कर लिया करते हैं। तो ये क्या करता है बताइए, थर्मोडाइनमिक्स इसकी कि हमारे टेम्परेचर का। चौथा क्या है, ऑप्टिक्स, इच डील्स विद लाइट, ठीक है, जो कि हम देख सकते हैं। लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी विच कैन बी परसीव्ड बाई अवर आइज, वही तो लाइट है। तो इट डील्स विद लाइट एंड इट्स इफेक्ट्स, उसके रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन और न जाने कितने डिस्पर्सन, 10 तरीके के प्रिंसिपल हैं, वो अब हम पढ़ेंगे, वो 12th में पढ़ा जाएगा। सो ऑप्टिक्स क्या है, इट deals with light and its effect। तो फिजिक्स में आज इतना ही करते हैं, फिर आगे बढ़ाएंगे। टाइम चाहिए तो एक घंटे